शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय शंकर हर हर शंकर। Good morning everyone, warm welcome. So we've been covering today probably is the fourth session on Mahapariva, that is His Holiness Chandrasekharendra Saraswati Mahaswamigal of Kanchi. First of all, I should thank all of you all to join. I mean, I've said it a few weeks ago, but I think banta hai repeat karna. Sunday ke din, instead of being cozy on a Sunday morning, you all take efforts to join the session and spend 1.5 hours in Guru Smaran. गुरु का दर्शन जितना इम्पोर्टेंट है, गुरु के साथ वास करना जितना इम्पोर्टेंट है। काफी लोगों को दर्शन मिलता है, बहुत कम लोगों को गुरु के साथ सहवास मतलब टू स्टे विद देम, टू बी विद देम, वो एक अनोखा एक भाग्य है, वो मिलता है। उसी तरह से गुरु के बारे में बात करना, गुरु के बारे में स्मरण करना भी उसके लिए भी भाग्य लगता है। And all of us are enjoying that for the past few weeks now. Probably this is the 11th or 12th week that we are enjoying that. It is equivalent to having darshan of Guru. Because on Smaran, I'll just quickly give you an example, a small incident in my own life. My mother was about 10 or 12 years old. मेरे माँ के साइड में उन लोग they are devotees of भगवान रमणा महर्षि। तो एक बार my mother was wearing a new dress that was given to her by her father. मेरे नाना जी ने दिया था, सिल्क का ड्रेस था। शाम का वक्त था, शाम को दिया जलाते हैं, राइट? तो दिया जलाने के बाद मैं वो जो तीली रहती है ना, that match stick, वो बाजू में रखा था। And my nani just went out of that place where the god is kept and where this thing was lit. And she just told my mother, who was a 10-12 year old girl, she told to get that TV and go and drop it into the dustbin. वो उनको बोला था। तो जैसे नानी अंदर गई, my माँ went into the room and she picked that TV. और जैसे वो घूमी, that because of the dress का एक वो जो फेरा रहता है, वो that went on to the दिया. And it caught fire. And the fire was almost to this height, almost coming to the face height. Silk dress था, फटक से आग पकड़ ली. My mother could only shout "Amma," and she shouted. My nani ran in. She ran in and she didn't have anything. She didn't know she's going to catch fire, right? She didn't have anything to cover her. सिर्फ हाथ लेके आई, हाथ से उसने सिर्फ ऐसे किया, just once. And she said, "Ramana, बचाओ मेरी बेटी को." Ramana is भगवान रमणा महर्षि. She said, "Ramana, मेरी बेटी को बचाओ." ऐसा करके उसने वो किया. तत्क्षण the fire got extinguished. Of course, her cloth was completely burnt, but not a single scar she had on her body, nor her hair was burnt. She had very long, beautiful hair those days. Not a single strand of hair was burnt. Although the fire, full body was almost still here. It was almost touching her face. So my mother, even today, when she speaks of this incident, she has tears in her eyes because भगवान का सिर्फ स्मरण सच्चे मन से अगर पुकारते हैं तो वो जो मदद है वो तत्क्षण, that is a perfect word, तत्क्षण, वो moment में it comes like this, like how Draupadi was saved by Krishna. She, for the last moment when the last strand of her cloth was to get out of her body, she shouts Govinda bachao, and that moment he comes and helps. Right? It is that quick. So स्मरण करना भी important है. Why I wanted to tell that story is thinking about gurus, thinking about saints, and the time that we spent is equivalent to satsang. It is equivalent to being with those gurus, and it is as good fortune that we are doing.
महापेरिवा ऑफ कोर्स लास्ट टाइम मैंने कवर किया था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 87 इयर्स 57 इयर्स उन्होंने यात्रा की. आई कवर्ड वन रीजन एज टू व्हाई डज यात्रा, ताकि लोगों तक पहुंच पाए, ताकि जो उनको देखने के लिए नहीं आ सकते हैं वो उनके पास जाके उनको दर्शन दे, ताकि एवरीबॉडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ हिज दर्शन. गुरु का दर्शन, गुरु को हम देखें, गुरु ने हमको देखा, गुरु का वाणी हमने सुनी, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सिर्फ ऐसे हाथ उठाना, गुरु का अनुग्रह, गुरु का कटाक्ष, गुरु का गुस्सा, एनीथिंग इज अनुग्रह. Whatever Guru does, everything is an anugrah, right? Even if we can see him, it is anugrah. If he can see it is anugrah. So that is the reason he travelled so much. One of the other reasons why he also travelled so much is because when a good saint, a Paramahamsa sannyasi, a saint, when he travels, that place becomes fertile. That place खुशहाली आ जाती है उस जगह पे, बारिश भरपूर आता है. That land becomes fertile, it grows a lot of crops for a long period of time, it becomes fertile. तो इसीलिए जहाँ जहाँ जा सके उन लोग पदयात्रा करते हैं, ताकि their feet touches the ground. And that is the reason Mahaprabhu also did that. Like Adi Shankara, he also did that. A few stories around how they can control nature. उनके लिए वो तो सहज, I have covered this even earlier. Miracle करने के लिए नहीं करते हैं, उनके मन में करुणा जागृत होती है. करुणा जब जागृत होके मुंह से या एक्शन से निकलता है, ऑटोमेटिकली मिरेकल हो जाता है. बिकॉज सिद्ध देवता बाजू में खड़े हैं, जस्ट टू वेटिंग फॉर देम टू गिव एन ऑर्डर. वो मन में अगर सोचते हैं कि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए तो वहां पे अच्छा हो जाता है. एंड दैट इज अ कंट्रोलिंग नेचर इज वेरी इजी फॉर दीज गुरुज. आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ कपल ऑफ देम. ज्ञानानंद स्वामी के बारे में मैंने पहले भी बात की है, एंड आई हैव टोल्ड अ लॉट अबाउट हिम. एक बार क्या होता है, तपोवन में है उनका आश्रम, तो वहां पे देयर आर सम मुस्लिम्स हुज विलेज इज नियर कुंभकोणम. वो मिलने आते हैं. उनके यहाँ पे 2-3 साल से बारिश हुआ ही नहीं है. ओके, सो अ फ्यू सम 7-8 मुस्लिम्स दे कम, एंड उनको किसी ने बताया कि एक सच्चा संत, एक परमहंस सन्यासी, एक संत अगर आके भूमि पे चले तो वहां पे खुशहाली आती है, वहां पे बारिश भरपूर होती है, वहां पे लैंड फर्टाइल होता है. वो उन्होंने सुना था. So they said, ये अभी के जमाने में ज्ञानानंद स्वामी is the only such saint who was living there. So they said we will go and meet him. वो आते हैं, मिलते हैं. मिलने के बाद उनके मन में है, ओके, उनके मन में ऐसा है कि अगर ज्ञानानंद स्वामी खुद आ जाए उनके गांव में तो क्या बात है. I mean that will be the best to happen, and it will bless the land, it will bless, make it more fertile, even rains will come. But वो कह नहीं पा रहे हैं, because एक तो धर्म अलग है, एक तो मुस्लिम है, और संतों को बुलाना और उनको लेके जाने का एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, वो जानते नहीं है, और वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है. सो दे डोंट इवन नो दैट. सो ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे आते हैं, नमस्कार करते हैं, फल फूल वगैरह लेके आके नमस्कार करते हैं, एंड दे जस्ट से कि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, एंड इट इज गॉन ड्राई, स्वामी का अनुग्रह होना चाहिए. तो बोलते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं और बोलते हैं खाना खा के जाइए. ज्ञानानंद आश्रम में जाने के बाद 2 चीज पक्का है, उनका अनुग्रह और उनका प्रसाद. ओके, ही रैन अन्नदानम लाइक एक्चुअली अ फैक्ट्री. ओके, इट सीम्स ज्ञानानंद स्वामी के वहां पे किचन में वो खाना पकाने के बाद ही यूज्ड टू वॉक एंड यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल द फूड. तो सब पे कटाक्ष करते थे, सब पे वो अनुग्रह देते थे, एंड देन फिर वो जब परोसा जाता था वो प्रसाद के तौर पे मिलता था. खुद इट सीम्स पंगत पे लोगों को बैठाए होते, खुद आते थे, एंड यूज्ड टू मेक राउंड्स एंड यूज्ड टू आस्क क्या चाहिए आपको, चावल चाहिए आपको, दाल चाहिए. ही यूज्ड टू फोर्स पीपल टू ईट. नो, दैट इज द वे ही यूज्ड टू ऑपरेट. वेरी ग्रेट सेंट. तो खाना वगैरह खा के आने के बाद नमस्कार करते हैं और आज्ञा पूछते हैं. गुरु के पास मिलने जाना, उनका अनुग्रह चाहिए, उनसे निकल के वापस आते वक्त भी उनका आज्ञा लेके आना चाहिए. आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते. वो उसके रिलेटेड भी अलग स्टोरीज है, समटाइम आई विल कवर दैट. जो आज्ञा लिए बगैर जाते हैं वो क्या होता है उसमें. तो आज्ञा लेते हैं कि हमको आज्ञा दीजिए, हम गांव वापस जाना चाहते हैं. एक हिंदी में ना एक रफी का एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आई थिंक नया दौर पिक्चर है शायद. उसमें वन ऑफ द पैराग्राफ्स इज, कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है. जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, हर हाल पे तेरा मालिक की नजर है. सो ज्ञानानंद स्वामी को उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है.
कि आपको आना है हमारे साथ. They couldn't tell that. Nayana Swami gets up and he says, मैं आऊँ तो चलेगा आप लोगों के साथ. तो they are like very happy. जैसे हम वही सोच के आए थे, आप आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, तो आप अगर आते हैं तो हम आपके लिए अलग से गाड़ी भी लेके आए हैं. So they get him into that car and they drive. Even as they are driving and getting close to their village, dark clouds have already started getting to form on the sky. The moment they cross their village boundary, it starts pouring. He's not even touched the ground. It starts pouring. उस रात को वहां पे रुकते हैं, पूरा रात it rains. All wells, ponds, सारे जलाशय भर जाता है. And since that land also becomes very fertile. एक और very good beautiful story on ज्ञानानंदा and how beautifully एकदम सहज तौर पे कैसे उन लोग अनुग्रह करते हैं, कैसे मिराकल्स करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं नेचर को. एक बार तपोवन में बैठे हैं ज्ञानानंद स्वामी, सामने कुछ रूम या कुछ बनाने का कंस्ट्रक्शन चालू है. तो कॉन्ट्रैक्टर बैठ के अभी सीमेंट लगा रहा है, सीमेंट गीला करके उसको लगा रहा है. एंड दैट मोमेंट डार्क क्लाउड्स गेटिंग फॉर्म. सो वो कॉन्ट्रैक्टर ऊपर देखता हुआ बोलता है, अरे अभी कहाँ बारिश होने का साइंस है, मैं अभी सीमेंट लगाऊंगा, उसे सूखने के लिए 2 दिन लगेगा, अभी बारिश गिरा तो मुझे वापस बैठ के सारा सीमेंट लगाना पड़ेगा, काश ये बारिश ना हो. दैट इज व्हाट ही सेज. ज्ञानानंद स्वामी साइड में बैठ के सुन लेते हैं. तो ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं कि अरे तूने ऐसे कैसे बोल दिया, बारिश की तो जरूरत है, इट इज रॉन्ग टू से बारिश नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो बोलते हैं क्या करूं स्वामी, अभी मैं सीमेंट लगा रहा हूं, अभी अगर बारिश हो जाता है, गीला हो जाएगा तो मेरे को वापस पूरा काम करना पड़ेगा, काश 2 दिन के लिए इट रिमेन्स, लेट देयर बी सम सनशाइन. तो बोलता है अच्छा ऐसे बोलो ना कि 2 दिन बारिश नहीं होना चाहिए, से डू दैट, दैट्स ओके. तो बाजू में एक डंडा पड़ा रहता है, तो बोलते हैं डंडा लो और वो बिल्डिंग के बाजू में गाड़ लो, एंड दैट इज व्हाट इज अस, देखिए गाड़ दो और तुम तुम्हारा काम पे लग जाओ. वहां पे वो डंडा गाड़ लेता है एंड ही स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क, सीमेंटिंग वगैरह कर लेता है. द क्लाउड्स आर गेटिंग थिक, क्लाउड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, बट एग्जैक्टली सन के सामने नहीं है, देयर इज एनफ सनशाइन. 2 दिन देयर इज क्लाउड्स, देयर आर नो रेन्स दैट कम. 2 दिन सारा सीमेंट का काम सूखने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, 2 दिन हो गया तुम्हारा सीमेंट सूख गया. तो बोलते हैं हाँ स्वामी सब सूख गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोलते बोलना चाहिए ना, हमने रोक के रखा है ना बारिश, वो डंडा लेके जल्दी आ जाओ. तो डंडा निकाल के भागते ही इट स्टार्ट्स pouring. That is the way they control nature and they control it with as if they are playing around with it. एक बार अभिनव विद्या तीर्थ, दैट इज श्रृंगेरी परंपरा में हमने चंद्रशेखर भारती का नाम सुना था, who was along with महापरिवार. वो बहुत जल्दी उन्होंने समाधि ले ली. उनके बाद अभिनव विद्या तीर्थ बिकम्स द गुरु. उनके बाद भारती तीर्थ जो अभी महासन्निधानम है, और उनके बाद अभी विदुशेखर भारती हु इज द करंट पॉन्टिफ. सो इनके महागुरु, ओके, वो एक बार श्रृंगेरी के जस्ट विसिनिटी में देयर इज अ माउंटेन, और माउंटेन के ऊपर देयर वाज अ टेंपल. तो शाम के वक्त दे गो फॉर द टेंपल का विजिट करते हैं करके निकल पड़ते हैं. सो गुरु गए हैं और कुछ फ्यू असिस्टेंट्स हैव गॉन विद हिम. दर्शन लेके जस्ट एज दे आर स्टेपिंग आउट, dark clouds are getting formed, and as soon as it is dark clouds, ही गुरु बोलते हैं कि अरे बारिश गिरने का चांस है, ऐसा बोलते हैं. That assistant says काश हम आश्रम में पहुंच जाए, उसके बाद बारिश गिरा तो अच्छा होगा. तो गुरु just says हाँ ठीक है, that is all he says, okay, हाँ ठीक है, but हम चलो जल्दी चलते हैं. So they start walking down the stairs. The rain is just 10 meters away. उनके पीछे rain is falling. और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे rain is catching up with them. And the moment they enter their matha, the rain falls completely. So the point over here is that they can control nature so easily. Mahaperiyava was similar. It seems वो क्या था ना, उस जमाने में ना there was a problem in Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu political scenario was very bad. 30s, 40s, 50s से लेके अभी तक, okay, there is a group of people who feel they are not a part of the Hindu culture. They call themselves Dravid, okay. This is based on the British concept of Aryan invasion and Dravid are alag और Aryans alag है. ये actually humbug theory है. महापरिवार has refuted it, स्वामी विवेकानंद has refuted it. हम लोग सब लोग Indians यहीं के हैं, कहीं से बाहर से आए नहीं हैं. The Britishers came out with this theory so that the Westerners become the more supreme being. तो ये उनका theory है, but it's actually humbug.
But these people have taken on that and saying we are the original Dravid, so we do not follow the Hindu gods. Atheism took up a lot of importance in Tamil Nadu in the time between 30s, even today. Okay, so all this AIDMK, DMK. I'm sorry, I'm making political statement in a public forum, but AIDMK, DMK, and all is a part of the same original thought process, which is atheist. It was so bad, it seems. There have been times when there has been life-threatening situations for Mahapariva. मतलब there have been threatening cause made कि हम लोग मार देंगे. ऐसे सब टाइम से गुजर के आए हैं महापरिवा, and never ever he had any security. जाको राकेश साईं मार सके ना कोई. That's the belief, right? They are the god themselves. तो उनको कौन और हम क्या जाके रक्षण करेंगे? ऐसे भी काफी incidents हैं. If I get time, I will cover. तो this is one of those times. What had happened is चेन्नई में जब उन्होंने विजय किया था तो उनका किसी ने अनादर कर दिया था. It seems उसके बाद महापेरिवा never entered Chennai. Even today, people who believe, they say Chennai has had water problems since then because a saint was disrespected. महापेरिवा के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वो करुणा मूर्ति है, right? They don't have anger on anybody at all, right? वो तो जगत गुरु हैं, वो करुणा मूर्ति हैं, सौलभ्य मूर्ति हैं, सर्वज्ञ मूर्ति हैं, वो किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं. मगर nature goes angry. You have disrespected the great saint, the nature will be angry on you. So it seems even today, because Mahapariva after leaving unfortunately never got a chance to come back to Chennai. उनका उस भूमि पे उनका पैर कभी पड़े नहीं उसके बाद. So even today apparently Chennai struggles for water. So there was a time when MGR, who's the founder of the AIDMK, if those who are in connect with politics will know, AIDMK का जो party है, उसके founder member was MGR. He was a chief minister, and Mahapariva was on yatra outside Tamil Nadu for 6 years. So 6 years Tamil Nadu struggled with water and drought. तो उनको किसी ने बताया MGR is AIDMK मतलब complete atheist. They don't believe. They were the people who were threatening Mahapariva. उनको किसी ने बताया कि this is because Mahapariva has not touched Tamil Nadu all these years. This is what we are facing. आपको उनको बुलाना है. You have to welcome him so that we get back the fertility of this land. So he agrees. He agrees, and then he sends his lieutenant, trusted lieutenant, कि जाके उनको welcome करो. तो Mahapariva also accepts it. तो महापेरिवा as he crosses into Tamil Nadu border, जब एक पीठाधिपति, जब एक धर्मगुरु, when he crosses a town, he has to be welcomed. There is a particular formality of doing it. There is a particular protocol. Similarly, when they cross state borders, there is a particular protocol. The administration of the state has to send its representative and welcome. तो वो उसका लेफ्टिनेंट को भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम जाके उनको वेलकम करो. He is also an atheist, right? तो बोलते हैं ये कौन से ड्यूटी पे लगा दिया MGR ने. तो फिर भी जाता है. अभी क्या बॉस ने बोल दिया तो जाना पड़ता है. हम बहुत कुछ कर लेते हैं ना, बॉस ने बोल दिया तो करना ही पड़ता है. तो he goes and he welcomes. इस तरफ वेल्लोर में खड़े हैं, उस तरफ से महापेरिवा आ रहे हैं. एंटर करते ही उसको there's a protocol, शॉल पहनाते हैं, उनको नारियल देते हैं. बट दिस मैन इज जस्ट कंप्लीटली स्टम्प्ड. उनको पता ही नहीं क्या करना है. वो देख रहे हैं और आंखों से पानी बह रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहे. थोड़ा देर के बाद उनको वेलकम करने के बाद there is a public rally. In the public rally he says, till today I was taught and I was of the belief, and I used to ask people, have you seen God? How can you believe in God? Have you seen God? If today somebody was to ask me, have you seen God? I will say yes, I have actually seen God, and that is Mahapariva. तो महापरिवा का सिर्फ दर्शन भी उनको अनुग्रह होता है. Even the worst of the atheists. That is the impact of such a saint. एक छोटा सा बात कर ले, life changing हो जाएगा. एक दर्शन मिल जाएगा, life changing हो जाएगा. That was the kind of impact Mahapariva had. That is the reason he had such huge amount of following, and it continues even today. The kind of following Mahapariva has even today is because he has touched individual lives. महापरिवा ने सारा जीवन आदिशंकरा ने जैसे कहा था उस तरह से उन्होंने जी के दिखाया. वेदों में जैसे कहा था उस तरह से जी के दिखाया. Completely by the rule book. This is something that we've seen already. एक beautiful story है. आदिशंकरा जयंती था. So this is when Mahapariva was almost in the fag end of his avatar career. उनका he took a lot of beating. 57 years of yatra is, I mean, it is, and not having food.
मैंने बोला है फास्टिंग करते थे तो 2-2, 3-3 महीने निर्जल उपवास करते थे, खाना नहीं खाते थे, खुद का ख्याल नहीं रखते थे, कभी बीमार पड़ जाते थे तो भी यूज्ड टू नॉट टेक मेडिसिन्स. सो देयर लॉट ऑफ abuse that has happened on the body, right? So he's taken a lot of beating, right? Already 95-96 years. तभी एक शंकर जयंती, आदि शंकर जयंती, हमने जो अभी लास्ट मंडे को वी हैड आदि शंकर जयंती, राइट? बर्थ डे ऑफ आदि शंकरा. तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मठ में ही इज इन कांची, तो मठ में वो मैनेजर आते हैं एंड दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ प्रोसेशन with the photo of Adi Shankara in the palki, ऐसे रख के they were saying कांची में एक प्रोसेशन करके आएंगे to celebrate the जयंती of Adi Shankara. तो कुछ भी चीज करने के पहले you have to take permission, right? उसको श्रीमुख, I have told this, you have to take a श्रीमुख from the परिवार. तो तभी जो परिवार थे जयेंद्र सरस्वतीगढ़, उनसे उन्होंने लिया एंड महापरिवार के भी आप यहाँ पे आते हैं एंड दैट मैनेजर सेज हमारा पालकी अभी तैयार है और शंकराचार्य का फोटो भी तैयार है, वो फोटो का भी प्रोसेशन लेने वाले हैं, हम चालू करने वाले हैं, आपका अगर आज्ञा हो तो हम चालू कर दें. तो महापरिवार बोलते हैं हाँ किसका, क्या कर रहे हो? तो उनको लगा कि उन्होंने सुना नहीं, तो थोड़ा जोर से बोलते हैं हम अभी फोटो शंकराचार्य का फोटो लेके उसको पालकी में बिठा के उस फोटो का प्रोसेशन करवाने वाले हैं. तो वापिस पूछते हैं किसका प्रोसेशन करवाने वाले हैं? उनको लगा अभी भी सुने नहीं, तो और जोर से वही बात वापिस दोहराते हैं. तो महापरिवार बोलते हैं मैंने पहले बार भी सुन ली थी, मैं 2 बार तुमको पूछ रहा हूँ, मतलब तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुम कुछ गलती कर रहे हो? तो दैट पर्सन सडनली नो बिकम सतर्क, वो बोल रहे हैं सॉरी स्वामी जी मुझे पता नहीं परिवार मैंने कुछ गलती की है तो माफ कर दीजिए. तो बोलते हैं अगर हम जो पीठाधिपति में है, हम जो धर्म के द पीक ऑफ धर्म है, अगर हम ही उसको फोटो बोल दे या विग्रह को सिर्फ मूर्ति बोल दे तो उसको भगवान कौन मानेगा, राइट? हम अगर मूर्ति समझ के पूजेंगे तो मूर्ति रहेगा उधर, पत्थर ही रहेगा, वो भगवान तो होगा ही नहीं. हम अगर वो फोटो को फोटो बोलेंगे तो फिर उसमें भगवान का अनुग्रह तो मिलने से रहा. उसको आचार्य का प्रोसेशन बोलना चाहिए. हर एक फोटो में आचार्य है, हर एक मूर्ति में भगवान है, ये एहसास से हमको करना है. अगर हम ही उसको फोटो बोल दें तो फिर क्या है, फोटो में से तो अनुग्रह आने से रहा है. तो ऐसा करके he tells him you take the procession of आचार्य himself, आदि शंकरा himself and जाके आओ. तो बोल रहे हैं कि आप आएंगे क्या, is what they ask. तो तभी तक is very ill health, is having going through a lot of ill health. तो बोलते हैं मेरे से अभी शायद नहीं होगा, आप लोग जाके आ जाइए. That is what महापरिवार says. तो ये लोग सब प्रोसेशन, एक बड़ा प्रोसेशन लेके 2-3 घंटे के बाद आते हैं. आने के बाद then he again comes and says कि प्रोसेशन पूरा हो गया, आचार्य का प्रोसेशन पूरा हो गया, ऐसे करके बराबर ही comes and reports. तो he says okay very good. रात को around 10-10:30 महापरिवार again calls this manager. He says आज सुबह तुमने क्या बोला था? तो उसको लगता है ये अब तक भूले नहीं. तो नहीं मेरे से गलती हो गई, मैंने बोला फोटो लेकिन आचार्य का प्रोसेशन ही कंप्लीट करके आए. नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आचार्य का प्रोसेशन जा रहे हैं, आप आएंगे क्या, मुझे तुमने पूछा था और मैंने क्या जवाब दिया, मैंने बोला मेरे से अभी हो नहीं रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मुझे ये बोलने का अधिकार है, ऐसे करके पूछते हैं. मैं जो यहाँ पे शंकराचार्य का प्रतिनिधि बन के इस पीठ पे बैठा हूँ, इस गद्दी पे बैठा हूँ, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आचार्य के पद पे चलूंगा, उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे चलूंगा, मुझे अधिकार ही नहीं है ना बोलने का, राइट? मैं करता हूँ, मैं अगर मैं आने नहीं वाला हूँ तो ये गलत है, मुझे उसी राह पे लेके जाओगे, तुमने वो सारा प्रोसेशन तुम गए हो तो मुझे उसी राह पे अभी मुझे घुमा के लेके आओ, आचार्य के जिस पद पे चले हैं उस पद पे मुझे चलना है. दैट इज आई एम ड्यूटी बाउंड टू डू दैट. ऐसे बोल के रात को 11 बजे फ्रेल हेल्थ में, आई मीन नॉट अ हेल्दी महापरिवार walks, it takes about 1.5 hours to go through that entire route, he comes back, then he sleeps. Then अगर हम ही आचार्य के पद पे नहीं चलेंगे और मैं अगर if I'm not leading it by example, how can people do that, right? He goes on to say, he says, हम अगर आज गोकुलाष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, हम दत्त जयंती मनाते हैं, हम अलग अलग फेस्टिवल्स अगर मनाते हैं तो इट इज बिकॉज आदि शंकरा इंश्योर्ड दैट धर्म स्थापना हो. हमारे घर पे सबका पिक्चर्स रहते हैं, राइट? फोटो सभी के रहते हैं, कृष्ण के रहते हैं, शिवा के रहते हैं, अलग अलग गुरु साईं बाबा के रहते हैं, स्वामी समर्थ गजानन महाराज के भी रहते हैं.
मगर आदिशंकरा का फोटो हम रखते ही नहीं है. लॉट ऑफ हाउसेस वी डू नॉट हैव आदिशंकरा फोटो. इसे आदिशंकरा का फोटो भी होना चाहिए, उनका भी रहना चाहिए, बिकॉज उनके वजह से बाकी के सब है. Right? Even if we are able to do puja to Rama, Lakshmana, Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, Krishna, Ganapati today, it is because Adi Shankara ensured that धर्म का स्थापना हो. उनका भी पूजा करो और आचार्य का भी फोटो होना चाहिए, is what he said. And it is duty bound that every सनातन धर्मी के घर पे आचार्य का फोटो होना ही चाहिए. आचार्य महापरिवार ना was, see, he had a tough role to do, right? He had a tough role because धर्म के अनुसार रहना ये बहुत डिफिकल्ट है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. ये करो, ऐसे ही करो, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं चलेगा. ये काफी ना हाँ में चलते रहता है. सो इट बिकम्स जनरली वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फॉलो. तो वो बहुत विनोद के तौर पे लोगों से करवाते थे. देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ह्यूमर आल्सो इन दैट. लाइक द वन दैट आई जस्ट कवर्ड. जानबूझ के 3 बार पूछेंगे ताकि इट गेट्स एम्बेडेड इन आवर माइंड्स कि गलत क्या है, व्हाट इज इट दैट वी डिड एज अ मिस्टेक. There are a lot of beautiful, not comedy, that's a wrong word, vinod, okay, that's a beautiful word. There's a lot of vinod in his leela also. So एक बार ना एक assistant है उनके मठ में, who used to पान के सेवन करते थे और बहुत पान खाते थे. मतलब always he used to have पान in his mouth, betel leaf, right? तो महावीर ने 2-3 बार बोला कि मत करो, इट इज नॉट गुड पान का सेवन, तुम्हारे लिए एडिक्शन हो गया है. पान का सेवन एक बार करना ठीक है, 2 बार करना ठीक है, कंटिन्यूअसली करना इट इज बिकम एन एडिक्शन. एंड एडिक्शन या व्यसन भगवान का होना चाहिए, बाकी किसी चीज का नहीं होना चाहिए. तो बोलते हैं कि तुम पान का सेवन मत करो, इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम. 1-2-3 बार बोले, सुने नहीं. वो छुप के फिर भी खाते थे. छुप के मतलब महावीर से क्या छुपा है, कुछ भी नहीं. तो एक बार क्या होता है, there is a bus load of devotees who come and meet him. तो when they come, हम लोग कैसे सब थाली में फल फूल, betel leaf, कोकोनट, ये सब लेके आते हैं, राइट? तो ऐसे one of the person comes, वो सब लेने के बाद he looks at पान, बोले यहाँ पान कितने हैं? तो बोलते परिवार कुछ 10-12 रहेंगे. नहीं ये बहुत कम है, मेरे लिए बास्केट भर के पान लेके आओगे? महापेरिवा ने बोल दिया तो I mean, people महापेरिवा कोई मानते ही नहीं थे. मानते हैं तो the devotees will ensure that जमीन आसमान एक करके वो लेके आएंगे. तो वहाँ पे रखते हैं, दौड़ के जाते हैं बाहर और एक बास्केट भर के पान लेके आते हैं. पान लेके आने के बाद वो बोलते हैं यहाँ से ना लेफ्ट साइड में 4था रूम है, उसमें जाके ये रख दो. तो वो जाके और रूम में रख देते हैं. फिर 2-3 जन होने के बाद वापस कोई फल फूल लेके आए, बोलते पान कितने हैं? तो कुछ रहेंगे 5-6. नहीं मेरे को एक बास्केट भर के पान लेके आओ ना. तो वो भी जाके लेके आते हैं. ऐसे 3-4-5 सबको वो 4थे रूम में भेज रहे हैं. एक 5 मिनट के बाद वो जो रूम में जो थे वो दौड़ के बाहर आते हैं. तौबा तौबा, महापेरिवा मैं आज से कभी पान नहीं खाऊंगा. उसके रूम में भेजे जो पान का सेवन करता है, उसके रूम में भेज देते हैं. उसके रूम में 10 ऐसे पान के बास्केट्स आ जाते हैं. तो वो बोलते हैं नहीं मैं आपसे कभी पान नहीं खाऊंगा. तो बाकी के मठ वालों को सरप्राइज है कि इतना पान क्यों मंगा रहे हैं. वो जब बाहर आता है तो पता चलता है दिस इज अ लेसन फॉर यू. एक बार देयर इज अ यंग बॉय, ओके, whose families come and stayed in the matha. तो सुबह उठने के बाद कुछ काम नहीं रहता ना, बच्चों को क्या है, कुछ वैसे काम नहीं रहते हैं. तो महापेरिवा जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे रूम के बाहर विंडो में आके ही इज वाचिंग महापेरिवा. तो क्या कर रहे हैं, ऐसा कुतूहल रहता है ना कि क्या कर रहे हैं. इतने लोग, लाखों लोग इनको आके मिलते हैं, ये क्या है इनमें. तो ऐसा बैठ के वहाँ पे खड़ा रह के देखता है, ही इज जस्ट डूइंग टाइम पास. तो वहां से एक असिस्टेंट आता है, एल्डरली पर्सन. कैसे होते हैं ना बड़े लोग बच्चों को डांटते रहते हैं, क्या कर रहे हो उधर, चलो चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, ऐसे करके रूडली रिमूव्स. ये महापेरिवा देख लेते हैं. तो महापेरिवा को एक्चुअली वो अच्छा नहीं लगा. ओके, ये क्या होता है, सी इन दिस एज वो अगर डांटेंगे ना तो दैट बॉय विल ऑलवेज हैव दैट इन हिज माइंड कि महापेरिवा के पास जाना गलत है, मठ में आना गलत है, वहां पे यू गेट ह्यूमिलिएटेड, 1000 चीजें ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये डिसिप्लिन है, खामखा का सरदर्द है, तो ना जाए बेहतर है. हम लोग कुछ गलती करेंगे, डांट खाने से अच्छा ना जाए. एंड देन यू विल स्टार्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम धर्म. दैट इज व्हाट हैपेंस. हमारे धर्म में एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर डिस्टेंस्ड बिकॉज दे फील दैट इट्स ह्यूमन ऑफ रिचुअल्स, और ऐसे ही करना चाहिए, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट उंगली से ही करना चाहिए एंड तभी सही है.
तो वो रिचुअलिस्टिक होने की वजह से विदाउट मीनिंग अटैच होना चाहिए, पर उसके अगर पीछे मीनिंग समझा दे तो इट बिकम्स इजी। तो सिर्फ डांटेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएंगे, वहां पर इनको अच्छा ही लगता है। मतलब ये है असिस्टेंट भी बहुत सीनियर, उनके सामने ही कांट इवन अपोज, ही डजंट वांट टू, उनको भी दुख नहीं देना है उनको। तो व्हाट ही डज इज, वो सिर्फ आके बोलते हैं कि वो इन सब वो दैट पर्सन दैट असिस्टेंट को बुलाते हैं, और असिस्टेंट को बुलाने के बाद ही सेज मुझे आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दीजिए। तो उसी टाइम पे ना उनका ना इट इज हिज ऑपरेशन, आई ऑपरेशन हुआ रहता है। तो बोलते हैं महावीर आप तो जानते हैं मेरा तो आई ऑपरेशन हुआ है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो, अभी जो लड़का इधर से गया ना उसको बुला लो। तो उसको बुलाते हैं, वो लड़का जो छोटा उसको डांट के निकाला वो आता है। वो आने के बाद उसको एकदम पास में बुलाते हैं, और करीब आओ और करीब आओ, मेरे पास में आके बैठो, वो पेपर उठाओ और मेरे को पढ़ के सुनाओ। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इफ ही इज अ स्मॉल चाइल्ड, उसको अगर आप बताएंगे कि यू नो यू हैव टू रीड पॉलिटिक्स और यू हैव टू रीड इकोनॉमिक्स, ही विल गेट बोर्ड। तो उसको अच्छा लगे ऐसे टॉपिक्स चूज करके, तुम जाके स्पोर्ट्स वाले में जाके देखो, स्पोर्ट्स में जाके गो थ्रू दी स्पोर्ट्स कॉलम एंड टेल मी। तभी ओलंपिक्स का कुछ चालू था, तो पूछ रहे किसको कितना गोल्ड मेडल मिला, किसको कौन से कंट्री हैज गॉट मैक्सिमम। महापेरिवा को ये इन्फॉर्मेशन जान के कुछ होने नहीं वाला है। बेसिकली आधा घंटा उसको उनके पास बिठा के प्यार से बात करके फिर भेजते हैं। ये होता है अनुग्रह। ओके, दिस इज व्हाट द गुरु विल डू व्हेन यू वांट समबडी टू बी क्लोज टू हिम। मैंने बोला ना व्यसन इज समथिंग दैट ही डजंट लाइक, तो ही यूज्ड टू कंसीडर कॉफी एज एन एडिक्शन, और वो उन्होंने एक्चुअली बोला है कि कॉफी छोड़ देना चाहिए। ओके, अनलाइक टी, कॉफी हैज कैफीन व्हिच कॉजेज एडिक्शन, राइट, एंड ही वाज अगेंस्ट पीपल हैविंग कॉफी। तो उनके डिवोटीज को हमेशा बोलते थे कि कॉफी छोड़ दो, एंड देयर लॉट ऑफ डिवोटीज हु हैव लेफ्ट। इमेजिन अ साउथ इंडियन तमिल फैमिली लीविंग कॉफी इज लाइक नेक्स्ट लेवल। ओके, इम्पॉसिबिलिटी है। वो कॉफी सुबह अंदर ही जाएगा ना फ्यूअल, तब तक तो गाड़ी चालू ही नहीं होगा हम लोग के यहाँ पे। I remember my grandparents, my aunt, even one of my cousin brothers, वो ऐसा सिर बैठ के ऐसा बैठ जाएगा, कॉफी आने के बाद then they will start, you know, that is वो अंदर फ्यूअल जाने के बाद फिर दिनचर्या चालू होगा। तो एक फैमिली को उन्होंने बोला था कि कॉफी छोड़ दो, एंड they were also very devout followers of महापेरिवा। 1 महीना 2 महीना हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ दे लीव कॉफी, बट वो तलब लगते रहते हैं ना कॉफी पीने की। तो ना वो हस्बैंड को एक आइडिया सोचती है, तो हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम क्या करेंगे, उस कॉफी को रोज उठ के ना महापेरिवा को नैवेद्य दिखा देंगे और वो प्रसाद के तौर पे पियेंगे। ओके, ये उनका आइडिया है कि हम महापेरिवा को दिखा देंगे तो नैवेद्य प्रसाद हो जाएगा, फिर कॉफी को नहीं पी रहे हैं, तो हम महापेरिवा जो पी रहे हैं वो प्रसाद पी रहे हैं। तो ऐसे करके 2-3 महीने पीते हैं, रोज उठते थे, महापेरिवा का फोटो भी था, बाकी भगवान का भी फोटो है, तो नैवेद्य दिखाते थे, कॉफी पीते थे, मतलब प्रसाद। तो एक 2-4 महीने के बाद कांची आना हुआ, वो लाइन में दूर खड़े हैं, हंसते हैं महापेरिवा, पास आने के बाद he doesn't look at them, he looks at the assistant and he says, तुम्हें पता है इनके घर में क्या कॉफी बनता है? तो असिस्टेंट अचंभित, असिस्टेंट बोलता है महापेरिवा आप कहाँ कॉफी पिए हैं, आपने तो कॉफी पी ही नहीं है। अरे नहीं यार, रोज पिलाते हैं मेरे को। 2 महीने से इनको कॉफी पी रहा हूँ मैं, रोज कॉफी पिला रहे हैं इनको। तो दैट वाज रोज क्या करते हैं महापेरिवा, माफ कर देना। तो बोलते हैं तुम जो वहां पे नैवेद्य देते हो मैं लेता हूँ, बहुत अच्छा कॉफी देते हो, तो मतलब हो सके तो कॉफी मत पीना, प्यार से समझाते हैं। बट द फैक्ट इज दैट नैवेद्य अगर दिया जाता है, सच्चे मन से दिया जाता है, गुरु को पहुंचता है, राइट। दिस अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बहुत सीनियर पर्सन रहते हैं, वेरी वेल टू डू फैमिली, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, भरा हुआ फैमिली है, सब इकट्ठा रह रहे हैं, वेरी नाइस और बहुत धार्मिक, बहुत धर्मवान, रोज उठ के अनुष्ठान करके, पूजा करके, रोज नैवेद्य करके, उसके बाद ही खाना खाते थे। महापेरिवा के बहुत बड़े डिवोटी थे। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज टू गेट अप एवरी डे। सासू ने क्या किया था, सास ने चारों बहुओं को ड्यूटी दे दी थी, मतलब एक दिन भाजी चीरने एक का काम, फिर खाना बनाने का एक का काम, झाड़ू पोता करने का एक का काम, एंड देन खाना सब होने के बाद दैट्स अ बिग वर्क, राइट, सेटिंग द किचन क्लीन, दैट्स अ लार्जर वर्क।
That is to be 1 to 1. It's a larger work I know because I've been doing through lockdown. पोस्ट लंच पोस्ट डिनर का काम, तो ये एक एक को ऐसे बांट लेते थे. एंड देयर इज टू बी शिफ्ट. सो एक हफ्ता ये करते थे, एक हफ्ता वो करते थे, ऐसे देयर इज टू बी अ शिफ्ट दैट इज टू हैपन. तो एक बार क्या हुआ, और नैवेद्य बनता है मतलब मैंने पहले भी कवर किया है कि नैवेद्य मतलब सब्जी बनाया, चपाती बनाया या दाल बनाया, महानैवेद्य मतलब चावल बना है, तो सिर्फ एक कटोरी में लेके आके दिखाना नहीं होता है. सारा जो बना है घर पे वो सारा का सारा यू हैव टू कम एंड ऑफर टू द गॉड एंड देन दैट इज टू बी एड एज अ प्रसाद. दैट इज हाउ इट इज. तो एक दिन क्या होता है, दिस फोर्थ बहू इज इन चार्ज ऑफ कुकिंग. उसका ध्यान कहीं और लग गया. उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, फिर भी कहीं तो लग गया ध्यान. वो सब्जी थोड़ा जल जाता है, तो आती है दौड़ते दौड़ते आती है एंड शी फाइंड्स दैट थोड़ा जल गया है. तो वो क्या करती है, सब्जी निकाल के जब डालते हैं ना, दूसरे पतीले में डालते हैं, तो जो जला हुआ भाग है ऊपर आ जाएगा ना, वो ताकि वो ना दिखे, वो वापस मिक्स करके शी पुट्स द जला हुआ पार्ट डाउन एंड सो दैट इट डजंट बिकम विजिबल. उसको लगा कि क्या कौन जानने वाला है, जला हुआ है नहीं जला हुआ है, नैवेद्य दिखा के फिर सब खा लेंगे और नीचे वाला भाग हम खा लेंगे लेटर ऑन. तो आके नैवेद्य दिखाते हैं, नैवेद्य वगैरह खत्म हो जाता है एंड शी थिंक्स नैवेद्य हो गया है, खाना खा के हो गया, किसी को पता नहीं चला है. 6-7 महीने के बाद महापरिवार को मिलने सारा फैमिली जाते हैं. जाने के बाद दैट मेन पर्सन, द फादर ऑफ द हाउस, ही कम्स, इंट्रोड्यूसेस मैं हूं, ये हूं, दिस माय वाइफ, दिस माय एल्डर सन, डॉटर इन लॉ, सेकंड सन, डॉटर इन लॉ, थर्ड सन, डॉटर इन लॉ, फोर्थ सन, डॉटर इन लॉ. बोलते तुम ही हो क्या वो जिसने वो खाना जला हुआ सब्जी मुझे खिलाया था. तो शी इज ऑल शॉक्ड. नोबडी इन द फैमिली आल्सो नोस. तो नमस्कार करके मेरी माँ मेरे वहाँ माफ करना चाहिए. नहीं बहुत अच्छा था, सब्जी तो बहुत अच्छा था, मगर छुपाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे तो तुमने नैवेद्य दे दिया तो मैंने ग्रहण कर लिया, अच्छा था, स्वादिष्ट था. बोले माँ मेरे वहाँ. तो द पॉइंट ओवर हियर अगेन इज, उनसे कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, राइट. हम हमारे घर पे करें, हम हमारे बेडरूम में करें, हम यहाँ पे है कुछ सोच रहे हैं, उनको सब चीज पता रहता है. ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम उनको सर्वज्ञ मूर्ति बोलते हैं और सौलभ्य मूर्ति भी बोलते हैं. मतलब एक सुलभ तौर से उनके साथ हम वी कैन डील, लाइक वी आर डीलिंग विद आवर फ्रेंड, वी आर डीलिंग विद आवर फादर, वी आर डीलिंग विद आवर ग्रैंडफादर. ऐसे एक सौलभ्य था, यू नो, दैट फ्रीडम, दैट एक्सेस टू हिम वाज सो नाइस. एंड ही यूज्ड टू टीच धर्मा, ही यूज्ड टू एंश्योर, सी दिस पीपल, वो कॉफी अभी जन्म में नहीं पिएंगे, चुपके भी नहीं पिएंगे, यू नो, बिकॉज़ वो यहाँ पी रहे हैं, उनको पता है, राइट. ये जला हुआ कभी नहीं रखेगी. She will ensure that particular ritual, that particular naivedya is offered in the right manner. He taught that in such a beautiful manner. That boy, जिसको उन्होंने इतना प्यार से पास बाजू में बिठा के न्यूज़ पढ़े, कुछ जरूरत नहीं है न्यूज़ सुनने की, न्यूज़ पढ़े, that boy will be hooked on to dharma. We will think dharma is so nice. महापरिवार is God himself. उन्होंने मुझे बाजू में बिठा के उन्होंने मुझसे न्यूज़ पढ़े, मुझे वापस आना है. And you will fall in line with what dharma requires. So he makes it so beautiful. एक बार पंढरपुर में उन्होंने विजय किया था. तो पंढरपुर में विजय करते वक्त पंढरपुर में एक तरफ एक भीमा नदी है, एक तरफ पांडुरंग का मंदिर है. भीमा नदी के उस साइड, चंद्रभागा के उस साइड उनका कैंप था, because that's a larger place. This place has got lot of houses and then मंदिर, तो आना जाना वगैरह रहता है, you know, it's a crowded place. तो बैंक के उस तरफ थे एंड दे यूज्ड टू कम, मतलब पूरा मठ का लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ना. तो यात्रा में काफी लोग थे, तो उन लोग बोट से ट्रैवल करते थे, इस तरफ आते थे, दर्शन देते थे, वापस जाते थे. सो देयर आर लॉट ऑफ दोस टाइम देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ बोटमैन एंड ऑल बोट का जो एक चीफ्टन रहता है ना, जैसे रामायण में गुहा था, वैसे देयर इज आल्सो चीफ्टन. सो इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बोट सर्विस देयर एंड द मठ हैज यूज्ड देम आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम. And they have served them. सच्चे मन से उन्होंने सर्विस की, पैसा भी लिए बगैर. They served the guru, the matha beautifully. जब भी चाहिए तभी वहाँ पे लेके जाते थे. महापरिवार को अगर चढ़ के आना है तो पहले बोट को क्लीन करके ensuring that you know it is pure and then they will travel. तो ऐसा सब they are doing. उनका यात्रा वहाँ पे विजय खत्म होने के बाद they thought इनका सत्कार होना चाहिए. तो ऐसे ऋण नहीं रखेंगे ना, गुरु will never keep the ऋण. तो बोलते सबका आदर सत्कार होना चाहिए. तो सबको धोती, टवल, साड़ी, यू नो, ऐसे सब चीजें गिफ्ट में सबको, ऑल बोटमैन दे गिव. सब बोटमैन को देने के बाद महापरिवार कॉल्स द असिस्टेंट एंड ही सेज, वो गुहा को भी दिया, गुहा मतलब चिफ्टन.
वो गुहा को भी दिया तुमने? तो बोलते हाँ सब चीजें सबको दे दिए। तो बोलते गुहा को कितने साड़ी दिए? तो बोलते एक साड़ी दिया। तो बोलते नहीं घर पे जाके वो पिटेगा, उसको एक और साड़ी दे दो। तो असिस्टेंट क्यों सबको एक ही साड़ी देना है, ये घर पे जाके एक साड़ी से क्यों पिटेगा? महापेरिवा ने बोल दिया है, तो जाके वो he goes and gives him that another, so गुहा को बुलाते हैं, रुको महापेरिवा wanted you to give one more साड़ी, and तुम कुछ एक साड़ी लेके जाओगे तो घर पे पिटोगे, इसलिए तुमको दूसरा साड़ी देने को बोला। तो उसके आंखों में पानी आ जाता है, वो बोलता है मैं लेके जा रहा था, मुझे लगा मैं पिटूंगा आज क्योंकि मेरे 2 बीवियां हैं। एंड महापेरिवा तो उसने बोला कि Have you told this महापेरिवा? बोलते नहीं महापेरिवा क्या बोलेंगे, मेरे 2 बीवियां हैं इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, पर महापेरिवा शायद सब जानते हैं। तो he knows कि जब ये साड़ी ले रहा था तो लेते उसके मन में ख्याल आ गया आज तो मैं पिटूंगा, एक साड़ी लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 2 साड़ी दे दो नहीं तो ये पिटेगा। तो ऐसे अनुग्रह करते थे महापेरिवा। Now what that Guha will always think about महापेरिवा and his अनुग्रह, right? तो ऐसे हास्य रूप में एक विनोद के तौर पे अनुग्रह कर जाते थे। पंढरपुर में there was a time when they had done the Vijay there, वहाँ पे एक पद्मा सुब्रमण्यम करके ना एक बहुत बड़े डिवोटी है, I don't know how many of you all have heard, maybe the South Indians in the group would have heard. Padma Subramaniam is a very great Bharatanatyam dancer, a very prolific and a very famous, one of the greatest dancers. Chitra Vishweshwaran and Padma Subramaniam are one of the greatest, the contemporary में they are one of the greatest doyens of Bharatanatyam dance. बहुत बड़े family generations they are महापेरिवा devotees. ऐसे devotees हैं कि महापेरिवा यात्रा में अगर कहीं रहेंगे, महापेरिवा के 57 years जो यात्रा होगी लेवर इन कांची, तो अगर उनको दर्शन लेना है ऐसा मन में आ गया ना, तो कहाँ पे है वो पता करते थे और स्ट्रेट वहां चले जाते थे। सतारा हो, बेलगाम हो, गुलबर्गा हो, एनीवेयर इन आंध्रा, एनी प्लेस, वेरेवर, श्रीशैलम हो, जहां पे भी जाते थे वहां पे वो दर्शन लेके आ जाते थे। तो एक बार वो पंढरपुर में जब विजय कर रहे थे, तो पंढरपुर में जाने का उनको दे वांटेड टू मीट हिम, सो किसी कारणवश उनको जाना था, तो वो पंढरपुर में जाएंगे। तो गुरु को ना इन लोग, देयर आर सम फैमिलीज दे जस्ट डू दैट, जब गुरु को मिलना ऐसा मन में आ गया तो कहीं पे भी रहने दो, दे विल एंश्योर दैट दे गो, दे विल मीट, दे विल टेक दर्शन एंड देन दे विल कम बैक। तो पंढरपुर में जब जाते हैं तो पंढरपुर में तो कोई पहचानते हैं नहीं, राइट, दे आर तमिलियंस, पंढरपुर इज इन महाराष्ट्र। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दोस डेज देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ घोड़ा गाड़ी, टोंगा, राइट। तो स्टेशन में उतरे, स्टेशन में उतरने के बाद यहाँ देखे वहाँ पे देयर वाज अ टोंगा, वो टोंगा पे चढ़े और देन दे सेड यहाँ पे शंकराचार्य आए हैं, उनके यहाँ पे जाना है। तो बोलते शंकराचार्य? नहीं शंकराचार्य नहीं, वो तो खुद अल्लाह है। वो तो खुद अल्लाह है, मैंने उनको देखा है, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है, मैंने एक्चुअली भगवान अल्लाह के रूप में मनुष्य को देखा है, मैं लेके जाता हूँ उनके पास करके। दैट मुस्लिम इज अ मुस्लिम टोंगा ड्राइवर, he takes them and gets him to दर्शन। तो चलते चलते वो बोलता है, वो पूछते हैं कि तुम तो मुस्लिम हो, तुमने कैसे अल्लाह जान लिया? तो बोलते हैं मैं उनका सेवा कर रहा था, तो एक बार इट सीम्स भीमा नदी में वो नहाने के लिए आए थे, एंड तभी भीमा नदी प्रवाह में चल रहा था, इट वाज इन स्वेल मोड। तो उन्होंने बोला कि मैं इनके बाजू में खड़ा था, मैंने बोला कि भैया मत जाइए, प्रवाह में है, मैं चाहिए तो भर के पानी दे देता हूँ, आप उसमें नहा लीजिए। तो बोलते नहीं मुझे नदी में ही नहाना है करके उन्होंने उनका जो दंड, शंकराचार्य में वो दंडी है ना, मतलब देयर विल ऑलवेज बी द दंडम विद देम। तो दंड का एक जगह पे ना नदी में ऐसे गाड़ देते हैं, जिस जगह पे गाड़े ना उसके उस तरफ प्रवाह में चल रहा है, और इस तरह इट बिकम्स लाइक अ स्मॉल पॉन्ड, देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर, द वाटर बिकम्स स्टैग्नेटेड। एंड दैट मुस्लिम सेज मैंने ये एक्चुअली मैंने देखा है, मैंने उनके बाजू में खड़ा रह ये चमत्कार देखा है, वो खुद नहाए, उसके बाद मुझे भी उसमें डुबकी लगाने बोला था उन्होंने, तो मेरे लिए तो वो अल्लाह ही है, इज व्हाट ही सेज। ऐसे काफी मुस्लिम स्टोरीज हैं, कपल ऑफ देम आई जस्ट कवर्ड। मैंने इसके पहले भी 1-2 कवर किए थे। संगमार लुंगी के एक ओनर आए थे एंड उनको 6 बार नमाज करने बोला था, बिकॉज अपैरेंटली मोहम्मद हैज सेड देयर आर, इट इज नॉट 5 times, it is 6 times in Quran, okay, which Mahaperia told me. And then there was one more very famous Muslim who had written Ramayana and Tamil, Kamba Ramayana को एक सिंपल तमिल में लिख के उसने प्रिंट करवाया था। उनको बोला तुमने रामायण तमिल का लिखा है, बट तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे धर्म के लिए तो भी तुम्हें कुछ करना चाहिए, you have to do a service to your mother also, that is your religion,
और तुम कुरान भी वैसे ही सिंपल तमिल में लिखो, ऐसा करके उन्होंने अनुग्रह किया था। तो एक बार क्या होता है, एक जगह पे वो विजय करके निकले हैं, उनका पूरा मठ का पूरा ढोल गैंग इट इज जस्ट लेफ्ट, पालकी में बैठे हैं एंड दे हैव लेफ्ट द टाउन, इट्स अबाउट हाफ एन आवर अवे, दे आर लेफ्ट। एक आधा घंटे के बाद महापेरिवा बोलते हैं रुको रुको रुको, तो कोई आ रहा है, तो रुकते हैं और पीछे मुड़ के सारे देखते हैं कि कोई नहीं है, नोबडी इज कमिंग पेरिवा, किसके लिए रुके आप, चलो हम दूसरे विलेज में जाना चाहिए। क्या होता है ना, इनका ना शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। एक होता है महापेरिवा खुद का, बिकॉज सन्यासी, परमहंस सन्यासी का दिनचर्या, मतलब उनका जो अनुष्ठान रहता है ना, एवरी सम आवर्स में दे हैव टू डू सर्टेन अनुष्ठान, उसके लिए जलाशय की जरूरत होती है एंड इट हैज टू बी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेस, ही कैन नॉट जस्ट सिट एनीवेयर एंड डू हिज अनुष्ठान। तो वो वैसे जगह ढूंढ के यू हैव टू कीप दैट एंड यू हैव टू रीच दैट प्लेस एंड देयर इज ओनली अ लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय व्हिच यू हैव टू रीच, द एंटायर गैंग हैज टू रीच। ये बीच बीच में महापेरिवा बीच बीच में रोक देंगे, इसका दर्शन देना है, उसको दर्शन देना है करके रोक देंगे, दिस विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। तो महापेरिवा रोक देते हैं, बोलते नहीं हमको रुकना नहीं है, अभी हमको चलना है। तो बोलते नहीं रुको, कोई आ रहा है। तो बोलते कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट रुकने के बाद एक सीनियर सिटीजन, एक थोड़ा बूढ़े इंसान हाफ के चल के आ रहे हैं दूर से। तो आके आंखों में पानी है और नमस्कार करते हैं, पेरिवा आपने मुझे दर्शन दे दिया, पेरिवा आपने मुझे दर्शन दे दिया। तो महापेरिवा बोलते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोलते हैं मैं ऐसे गांव से आया हूँ, आपके दर्शन लेना था। बोलते हैं वही तो मैं था, मैं 10 दिन उधर ही था, वहाँ क्यों नहीं लिया दर्शन? तो बोलते हैं नहीं वहाँ पे बहुत भीड़ था, मैं आपके करीब आ नहीं सका, दूर से मुझे दर्शन मिल रहा था, मुझे आपके साथ ले लो, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आप अपने साथ ले लो। तो बोलता है नहीं सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे भी, यू ऑल्सो हैव अ फैमिली, यू हैव चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरा भी ये मठ फैमिली है, मैं भी उसका भी निर्वाह करना है। एक काम करो, तुम मुझे हमेशा अपने ख्याल में रखना। महापेरिवा गोज ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ही सेज मैं भी तुम्हें अपने ख्याल में रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, विच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, राइट। एक इंसान के ओर अगर एक परमहंस सन्यासी का थॉट फिक्स हो जाए, साथ पुष्टे उसका will prosper, okay? Even once, if a saint thinks about, he sees a person and he thinks about that person, that is a blessing. It will take care of 7 generations. महापेरिवा सामने से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग आई विल रिमेम्बर यू, ऐसे करके वो नमस्कार करते हैं। एंड देन बाजू के असिस्टेंट्स पूछते हैं कि तुम इतने दिन रुके क्यों? बोले नहीं वो मैंने आज तक मैंने कभी भगवान, आई हैव नेवर सीन गॉड, हमारे में गॉड होता ही नहीं है, देयर इज नो रूप। तो बोलते हमारे में मतलब, बोलते मैं मुस्लिम हूँ, अल्लाह को कोई रूप ही नहीं है, अल्लाह का अगर रूप है तो वो यही है, इसलिए मुझे इसमें इनमें मुझे अल्लाह का नजर, इनका दर्शन हुआ और उनका मुझे अनुग्रह मिला, मैं बहुत पावर हो गया हूँ, इज व्हाट ही सेज। एक बार महापेरिवा का एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, महापेरिवा इज ऑलमोस्ट नाउ इन 90s, दैट पर्सन इज आल्सो इन 90s, वो दांत वगैरह गिर के वो आए हैं दर्शन लेने के लिए। He comes like a normal Muslim in his dress, मठ में दे डोंट अलाउ, बोलो नहीं मैं महापेरिवा के स्कूल में था, मुझे मिलना है। एंड ही से महापेरिवा, ही स्टिल कॉल्स हिम विद द पूर्वाश्रम स्वामीनाथा, बोलो मैं स्वामीनाथा के स्कूल में था, उनको बोलो मैं आया हूँ, मुझे मिलना है। तो महापेरिवा ऑल्सो कॉल्स हिम, बुला लो, उनके पास करीब बिठा के उनसे उस जमाने का सब बात करते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज स्वामीनाथा तुम ना स्वामी बन गए, उसके बाद हमारा मिलना ही हुआ नहीं। He doesn't even call him Periva, he calls him with the first name, which is also Purvashram. And Mahaperiva also doesn't mind, he blesses him, he gives him chandan, कुमकुम और विभूति तो नहीं दे सकते हैं ना, because Muslim के लिए it's not to be taken. Chandan is common, तो चंदन का हो, he gives him the blessing and he asks him to leave. So ऐसे करुणा करते थे in a manner which people will like, people will take a liking for him. So I thought I'll just cover a few stories on that, on the way he did karuna on these people also. हमने काफी लीडर्स के बारे में भी बात की थी, हमने सेंट्स के बारे में भी बात की थी, है ना, how the kind of saints he has met and the kind of अधिष्ठान he has visited. धन्यति माई संत प्रसवली, नामदेव ने बोला था एक माँ, वो माँ जो एक संत को जन्म देती है वो इतनी बड़ी, she is what, she is goddess herself, is what Namdev Maharaj said. And Mahaperiva ki mother gave, I have told you, gave birth to 2 saints, Mahaperiva and a younger brother called Shivansar. Shivansar was apparently some 10 years younger to Mahaperiva,
और महापरिवार के समाधि के बाद 2 साल में उन्होंने भी समाधि ले ली, which means he must have lived for about 92, 96, 94 years maybe. तो it seems दिखने में he used to look very much alike महापरिवार, frail body, वो खाते ही इतने ही थे, you know, every day he used to only have 3 of this, ऐसे सांबार और राइस, दही और राइस और थोड़ा सब्जी, बस इतना ही. It seems there was a stretch in life for 45 years he had not drunk any liquid at all. पानी भी नहीं पिए थे, 45 years ऐसे रहे थे, ऐसे बहुत बड़े. And he used to hardly visit the matha because of क्या है, if you want to visit the matha ना, then what people will think is महापरिवा is favoring his brother, वो उनको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं. You know, he used to not even meet, go मठा के आसपास भी नहीं जाते थे. Philosophically, very high concepts, very complex concepts को उन्होंने लिखा है. उस पे there are books which he has written. एक small story बताता हूँ. शिवन सर पद्मा सुब्रमण्यम के यहाँ पे the dancer which I told, उनके घर पे कुछ 6 साल रहे थे. बाद में किसी और के घर पे रहे, ऐसे अलग अलग घर पे रहते थे. Because they knew he was a great saint, people used to keep him in his house. 8th January 1994 is the day on which Mahapariva took Samadhi. उस दिन he comes to Padma Subramaniam's house at 2 o'clock. Mahapariva took Samadhi at 2:55. He comes, he sits in the living room, and his morose, he is not in his normal self. तो इन लोग आके पूछते हैं, सर, उनको सर बुलाते थे, शिवन सर आपको कुछ चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. कुछ पिएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ नहीं चाहिए. तो 2 बजे आए, अराउंड 2:55, he just got up, he said, सब हो गया, मैं निकलता हूँ. तो they didn't understand. they said, क्या हो गया, बैठिए, कुछ खाना खा के जाइए. तो बोलते नहीं, सब कुछ हो गया, मैं निकलता हूँ. And he walks, and in 10 minutes they get a phone from the matha that Mahapariva has taken Samadhi. तो शिवन सर भी ऐसे बहुत बड़े संत थे, and it was his own brother. महापरिवा himself has told कि अगर मठाधिपति नहीं बनता तो शायद सिमन बन जाता. इतने बड़े महान है वो. महापरिवा के मुंह से अगर आना है तो then it is the final certificate. Across religions, across beliefs, Mahapariva was hands down considered as an expert. Neliseri में, Neliseri is near Palghat, is when Mahatma Gandhi himself met. Okay. महात्मा गांधी भी उनके बारे में, दिस इज 1927. 1927 में महात्मा गांधी ने बहुत सुना था महापरिवा के बारे में. यंग सन्यासी, you know, he must have been what, 1927 would be about 33 years, you know. यंग सन्यासी, so popular, लोग आके मिलते हैं, लोग इनके बारे में इतना बात करते हैं. People are ready to do anything for this saint. Must be a powerful saint. महात्मा गांधी के बारे में couple of words. A great leader, many here might agree, might not agree, but he was a great person. वो राम का नाम prayers किए बगैर वो उनका खाना नहीं खाते थे. He was also a very strict disciplinarian. सुबह उठ के प्रार्थना करने के बाद ही खाएंगे, दिन में एक ही बार खाएंगे, दूसरे बार नाइट को उंगली फल ही लेंगे. A very strict dietitian, he had a very strict diet. He ensured that he kept his body and health very good. And प्रार्थना किए बगैर कुछ नहीं करते थे. So he had a very disciplined life, very similar to what महापरिवा को भी खाना used to be limited, प्रार्थना, अनुष्ठान, इस पे काफी बिलीफ था महात्मा गांधी का भी. तो गांधी जी आके मिलते हैं, नलीसेरी में बैठे हैं, महापरिवा is sitting in a cow shed. अच्छा, one of the preferred location for a saint to sit is a cow shed, because cow shed is a place where God resides. अगर कोई और जगह प्योर पावन भूमि नहीं मिलता है ना, they will search for a cow shed, and गुरु को वहाँ पे आसन बना देते थे, and they will sit in the cow shed. That is how it is. That is what it's a purest place on earth. तो वहाँ पे cow shed में बैठे हैं महापरिवा, and Raja ji, that is C. Rajagopalachari, whom I spoke about in the earlier session also, he gets Mahatma Gandhi for darshan. 5-5:30 के आसपास आते हैं, दर्शन लेते हैं. पहले 5-10 मिनट कुछ बात नहीं होते, एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं हम लोग. Okay, Mahatma Gandhi is also getting soaked in the bliss of being in the presence of God himself. Mahapariva bhi has ke is just giving him blessings. थोड़ा देर के बाद महापरिवा starts off in Sanskrit. महात्मा गांधी says, मुझे संस्कृत समझ में आता है, मगर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदी में बात करता हूँ अगर अनुमति है तो. Generally महापरिवा के साथ there used to be a translator. Somebody will sit and do the translation because people used to come from different countries.
people from France, people from Switzerland, England, America, Russia, अलग अलग प्रदेश, भारत में अलग अलग प्रदेश से भी लोग आते थे. So generally they will have some translator. तो बोला ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मुझे संस्कृत समझ में आता है, मैं संस्कृत में बात करूंगा, वो हिंदी में बात करने दो. ऐसा उनका वार्तालाप चल रहा है. 5:30 बज गया, 5:45 बज गया. राजा जी को टेंशन हो जाता है बिकॉज गांधी ऑल्सो इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. उनका प्रार्थना का वक्त हो गया है, उनका आहार का फलाहार का भी वक्त हो गया है. ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब, बट ही स्लाइड बीच में आते हैं और बोलते हैं गांधी जी अभी आपका समय आ गया है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ ब्रेक. तो महात्मा गांधी सेज मेरा प्रार्थना और मेरा खाना दोनों अभी यही चल रहा है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. मेरे को कुछ किसी की जरूरत नहीं है, एंड माय प्रेयर्स आर हैपनिंग एंड आई एम बीइंग फेड द हाईएस्ट फिलॉसफी हियर. आई डोंट वांट टू गो आउट एनीवेयर. तो और 1 घंटा बैठते हैं. महात्मा गांधी स्पीक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. महापरिवार गिव्स अ लॉट ऑफ एडवाइस. ही आस्क्स कैसे होना चाहिए फ्रीडम मूवमेंट, क्या होना चाहिए. महापरिवार एक्चुअली ब्लेसेस फ्रीडम मिलेगा. ही गोज ऑन टू सेज once freedom होने के बाद ensure that this country will always have freedom to follow your religion. आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट. 6 फंडामेंटल राइट्स में for ability to follow your religion is a fundamental right. Unlike any constitution in the entire world, even secular countries, they are all negative secular. मतलब the state doesn't recognize any religion. इंडिया में इट इज अ पॉजिटिव सेक्युलर, मतलब स्टेट रिकॉग्नाइजेस ऑल रिलीजन्स. ओके, एबिलिटी टू परस्यू योर रिलीजन का फ्रीडम फंडामेंटल राइट में, उसका मैं स्टोरी आऊंगा आगे, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. बट महात्मा गांधी को 1927 में बताते हैं कि फ्रीडम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट इंश्योर दैट फ्रीडम टू फॉलो योर रिलीजन हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. रिलीजन इज क्रिटिकल फॉर आवर लाइफ्स और वो फ्रीडम होना चाहिए. ये बात करके निकल जाते हैं गांधी जी. गांधी जी एज यूजुअल रिपोर्टिंग, आर जर्नलिस्ट खड़े हैं वीडियो कैमरा लेके. और व्हाट इज योर फीलिंग, हाउ डिड यू फील, यू मेड द ग्रेटेस्ट थिंग. तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं अपना परमार्थ के लिए, मेरे पर्सनल फिलोसॉफिकल ग्रोथ के लिए मैं वहां पे गया था. नथिंग टू डू विद द नेशन, सो आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग. ये काफी साल हो जाते हैं. 1968 में महापरिवार को पूछते हैं, दिस आफ्टर गांधी डाइड, ऑलमोस्ट 20 इयर्स आफ्टर गांधी डाइड. महापरिवार को पूछते हैं आप गांधी से मिले थे, क्या चला, क्या हुआ था. महात्मा गांधी ने तो कुछ बताया नहीं हमको. तो महापरिवार बोलते हैं अब तो चले गए, बहुत बड़े महात्मा थे, चले गए, तो मैं बताता हूँ. इट सीम्स वन ऑफ द क्वेश्चन दैट महात्मा गांधी आस्क्ड, ही सेड हाल ही में एक किसी का असैसिनेशन हो गया है, मुझे डर है शायद मुझे भी कोई असैसिनेट करे. दिस 1927, ओके, 21 years before he was really assassinated. He said मुझे ऐसा प्रेमोनिशन है कि शायद मुझे भी कोई असैसिनेट करे. परिवार में इतना ही मांगता हूं कि जो मुझे असैसिनेट करे उसके प्रति भी मेरे मन में द्वेष ना हो, इसका अनुग्रह करो. That is what गांधी जी asked. He says, let even the hand which is raised to kill me, let me pardon him, let me not have द्वेष against him. इतना अनुग्रह मुझे करो, is what he says. बोले ऐसे great person थे महात्मा गांधी that he wanted to even not get angry or curse the person who has come to kill him, and that is what happened. Right? उनके मुख से लास्ट नाम जो निकला was हे राम. I'm sure Gandhi must have attained moksha. Many here might believe me, might agree with me or know is a different thing, but that is a fact. On this, ना भाषा समझने का जो एक तरीका रहता है. एक बार क्या होता है, इनको भाषा समझना ही चाहिए ऐसा जरूरत नहीं है, इनको तो सारा भाषा आता ही है. महापरिवार तो न्यू 14 लैंग्वेजेस इवन अदरवाइज. एक बार ज्ञानानंदा के यहाँ पे एक फ्रेंच पर्सन आते हैं, and he has lot of questions. Westerners में ना lot of questions they have, and very sincere people. ना those who are in the philosophical path, I have seen a lot of Westerners. They are very sincere in their approach. They have a lot of questions. They want to ask questions. They get those answers and they are really happy about it. हम लोग के जैसे नहीं है, मंदिर आश्रम जाएंगे तो पहले खाना कहाँ मिलेगा, ये दर्शन करो, खत्म करो, जाके सो, that is our purpose. उन लोग आते हैं, they have a lot of questions. They want answers for them. तो एक फ्रेंच आते हैं and then he comes and talks to ज्ञानानंद स्वामी. ज्ञानानंद स्वामी को तो फ्रेंच कहाँ से आएंगे, इट्स नॉट. तो he has somebody who comes to translate. तो ज्ञानानंद स्वामी रोक देते हैं, तो बोलते आप प्रश्न पूछिए. he is asking questions in French. ज्ञानानंद स्वामी is answering not in Sanskrit, he is answering in Tamil. Okay, पूरा होने के बाद that person is in tears. बोलते हैं you have answered all my questions. उन्होंने फ्रेंच में पूछा, इन्होंने तमिल में जवाब दिया और उनको सारा चीजें समझ में भी आ गया. गुरु का अनुग्रह ऐसा होता है, राइट. सिमिलर स्टोरी
महापरिवार से मिलने एक देयर इज अ स्विस गर्ल, ओके, यंग गर्ल, शी हैज अगेन गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस. शी कम्स, शी वांट्स ऑडियंस, उनको आके मिलना है महापरिवार से और काफी सवाल उनको पूछना है. तो पहले ही शी हैज टेकन, स्विट्जरलैंड से आना है ना, तो पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह लेके रखा है, महापरिवार ने भी अनुश्री बुक दे दिया है ये टाइम पे करके. So she comes and she waits in a house outside the matha because मठ में आने जाने वाले काफी लोग रहते हैं and you know there is a dinacharya and she considers herself not of that achar. वो you have to be in a particular dress, you have to come in a particular manner, you have to behave in a particular manner. So she feels that she might not do that and become a disturbance for others. तो वो सामने वाले घर पे बैठी है till such time they call. सारा काम होने के बाद थोड़ा जब रेस्ट लेने के लिए बैठेंगे महापरिवार तभी आके मिलेंगे. That was the plan. तो महापरिवार का अनुष्ठान सब हो जाता है, उनका नैवेद्य, उनका भिक्षावंदन सब होने के बाद there is a time when महापरिवार has given for that lady to meet. महापरिवार क्या करते हैं, उठ के उनके पालकी में जाके सो जाते हैं. तो असिस्टेंट अभी सोच रहे हैं कि ये महापरिवार से क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये टाइम दिया है, टाइम के बहुत पाबंद थे महापरिवार, तो ये अभी क्यों सोने के लिए चले गए और ये पालकी में क्यों जाके सोए गए हैं, पता नहीं करके थोड़ा देर 15 मिनट 20 मिनट रुकते हैं, आधा घंटा रुकते हैं, महापरिवार को उठाने की कोशिश करते हैं, उठ भी नहीं रहे. तो अभी असिस्टेंट्स को पता नहीं है, अभी वहां पे दैट लेडी इज वेटिंग, उनको आके बोलते हैं कि वो ना अभी पालकी में सो गए हैं. तो दैट लेडी इज वेरी हर्ट इन द सेंस, दुख हो गया उसको कि इतने दूर से आई हूँ, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए और मुझे इतना भी लायकी नहीं है, मेरी इतनी भी मेरी हैसियत नहीं कि मुझे दर्शन मिले. शी इज अपसेट इन दैट सेंस, शी इज फीलिंग बैड अबाउट इट, काश मुझे दर्शन मिल जाए. तो ऐसे करके रो रही है. तो इन लोगों का एक आइडिया सोचते हैं, इन लोग बोलते हैं कि पालकी में सोए हैं तो पालकी उठा के इसके रूम में लेके आ जाते हैं. तो इन लोग सारे जाते हैं और पालकी उठा के दे गेट महापरिवार टू हर रूम एंड दे वेट फॉर महापरिवार टू गेट अप. अगेन एक 10 मिनट गया, 15 मिनट गया है, महापरिवार इज नॉट गेटिंग अप. एक थोड़ी देर के बाद महापरिवार सडनली गेट्स अप, ही सीज हर, 2 मिनट he just gazes at her and then again sleeps. And this lady is all in tears, and but this time she tears with a smile on her face. तो असिस्टेंट्स आते हैं, माफ करना, महापरिवार ने दर्शन भी नहीं दिया और उठ के तुमसे बात भी नहीं किया, शायद आज तुम्हारा लभ्य नहीं है, इट इज वी आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ. तो बोलते नहीं, आई हैव गॉट ऑल माय आंसर्स, ही इज आंसर्ड इन 2 minutes, ही जस्ट गेज्ड एट मी एंड ऑल माय क्वेश्चंस आर गॉट आंसर्ड. नए दीक्षा दे दी उन्होंने, मतलब मौन व्याख्यान. जो दक्षिणामूर्ति ने उनको, जो उनके शिष्यों को दिया था, उनके ही तो अवतार है, उनको मौन व्याख्यान देने में कितना देर लगने वाला है. तो उन्हें मौन व्याख्यान दे दी, मुझे सारा, मैं ऑल माय क्वेश्चंस हैव गॉट आंसर्ड, अमेजिंग दर्शन हो गया करके रोते हुए, आंखों में आंसू, रोना मतलब क्या, आउट ऑफ हैप्पीनेस, आउट ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट शी हैज गॉट. सो सिमिलर स्टोरी, यू नो, Paul Brunton, when he goes and meets Ramana Maharshi, he's got a lot of questions. So Paul Brunton, who's Paul Brunton? Paul Brunton, we owe him. Okay, he's a Britisher. Okay, अगर हिंदू सनातन धर्म वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर पता है, and to this extent अगर पता है, it is because of 2 great people. Okay, one is a very great person, of course it is Swami Vivekananda himself. स्वामी विवेकानंदा के वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुइज्म के बारे में पता चला. वी ऑल नो द फेमस स्टोरी. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन पे ही हैड बीन इनवाइटेड. काफी स्ट्रगल के बाद, इट वाज आफ्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर हिज गुरुदेव टुक समाधि, ही गोज टू यूएसए. वहां पे जाके ही इज एक्चुअली टेंस, ओके, कि सामने ह्यूज ऑडियंस है, हर एक देश, हर एक धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है, and Sanatan Dharma के representative is Swami Vivekananda in saffron robe. I don't know if you have seen Swami Vivekananda's photo. Amazing, awe-inspiring photograph. You know, देखते ही ऐसा जोश आ जाएगा, ऐसा एक figure was Swami Vivekananda. So he is also sitting, but Swami Vivekananda also has got a lump in his throat. वो बात नहीं कर पा रहे हैं. तो उनका समय आते तो नहीं, किसी और को भेज दो, ऐसे और को भेज दो. And he is now the last. तो बोलते अभी और कोई नहीं, अब आप ही को बात करना है. He comes and stands. He just एक minute he just thinks about his Gurudev, and he starts the famous one, right? Sisters and Brothers of America. Every person was given, it seems, 3 to 4 minutes to talk. इनका तो Sisters and Brothers of America बोलने के बाद 3 मिनट तो सिर्फ applause हुए. The whole audience just applauded for three continuous minutes. That is the kind of applause that he got
for just saying sisters and brothers of America. Because Englishmen, when you start, you just say ladies and gentlemen, right? भाइयों बहनों ये हमारे लिए, that is our culture, right? That is how he did the translation. He said sisters and brothers of America बोलते ही great impact. उसके बाद people heard him. There were a lot of other discourses that he gave. वो सब सुनने के बाद people have gone crazy on Swami Vivekananda. I just quickly cover this story also. तो स्वामी विवेकानंद को ना one of the person says कि आप अपना कहानी बताइए. You talk of lot of other things. You talk of Sanatan Dharma. You talk of this. You talk of that. Why don't you talk of how you became a guru? How you learned all this? आप अपने बारे में भी please बताइए. तो पहले ना बोलते रहते हैं. फिर उनको सोचता है कि एक काम करते हैं, बताते हैं. Let us do this. तो बोलता है ठीक है, मैं बताता हूँ. You arrange a good place, a large place. Ensure that it is advertised also properly, so a lot of people come. So बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जमते हैं, and that day also comes, and he goes into the stage and he starts. And he starts with the story of his Gurudev, Ramakrishna Paramahamsa के बारे में, ठाकुर जी के बारे में. He starts off. पूरा कहानी बताते हैं, 1.5-2 घंटा सिर्फ रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताते हैं. And end में he says, ऐसे महान गुरु के सैकड़ों शिष्यों में से मैं एक हूँ. He says, ends up with that as a story. Entire 1.5 crores is spoken only on his Gurudev. Amazing saint is Gurudev, amazing saint is Vivekananda. Vivekananda को आके एक इंसान पूछते हैं, आप इतना सब जानते हैं, कहाँ से सीखे? He is saying, I learned everything from an illiterate guru. Ramakrishna Paramahamsa was an illiterate, but परम ज्ञानी थे, right? Being literate is what? हम पढ़ते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं हमारे बुक्स में, right? वो ऐसे संत होके गए कि उनके बारे में हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाता है. That is what is more important. So Paul Brunton is the second person. Paul Brunton, what he does, I don't know if any of you all have read a very beautiful book called Search in Secret India. A book worth reading. Paul Brunton को ऐसा लगता है कि he had a lot of philosophical questions. He was in a position of where he was getting suffocated. He had a lot of questions and it wasn't getting answered in his religion. So if somebody tells him, go to India, there are a lot of great gurus who might answer your questions. So he goes on a whole circuit in search of a guru, meets a lot of people. Search in Secret India is about lot of gurus that he has met. But finally he comes to Ramana Maharshi and there he really finds his guru. Ramana Maharshi becomes his guru. आज भी Ramana Maharshi Ramanashram में you find a lot of Westerners, a lot of Britishers, a lot of different people who come there. और उनको देखना चाहिए ना, वो आएंगे, they are not bothered about food, they are not bothered about anything. वो आएंगे simple clothing में आएंगे, धीरे से बैठेंगे, समाधि अलग अलग जगह पे बैठेंगे and वो will begin to meditative state. वो जहाँ पे रमण महर्षि रहे या उनका समाधि मंदिर या एक माउंटेन चढ़ने के बाद there is a विरूपाक्ष केव या वहाँ पे काफी साल रहे थे रमण महर्षि, तो वहाँ पे बैठ जाते हैं. So very dedicatedly they will come and those devotees, amazing, huh? You should really watch them. Being with such servitude they come. So Paul Brunton has met a lot of gurus, but उनका कहीं मन नहीं लगा. That doesn't mean that those gurus that he met were of any less quality. See कैसा रहता है? Suppose एक माँ पिताजी and बच्चे, they are going in a crowded place, and that son gets lost. Now that son is crying for his parents, और parents उसको दिख नहीं रहे हैं. भले there are other ladies who come, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कुछ डरो मत, हम लोग ख्याल रखेंगे, हम ढूंढेंगे. जितना भी वो बोलेंगे that बच्चा is going to cry for his mother. और जब वो उसका माँ को देखेगा ना, तभी वो रोना बंद करने वाला है, right? So it is like that. Every person has got a guru, and that guru and शिष्य का वो लिंक रहता है. वो हजारों गुरु को देखेगा ना, तो भी उसका मन खुश नहीं होने वाला है. सच्चे गुरु को देखेगा तो मन खुश नहीं होगा. वो जब उसका गुरु को देखेगा ना, तभी वो मन खुश होगा, right? So Ramana Maharshi was his designated guru. So this person, Paul Brunton, after visiting a lot of places, he comes to Chennai. वहाँ पे वेंकट रमणी करके there is a great scholar. His guru is Mahapariva. तो वेंकट रमणी को आके बहुत ब्रंटन पूछते हैं, मैं काफी जगह पे गया हूँ, great gurus I have met, no doubt, but मेरा मन कहीं शांत नहीं हो रहा है. I am not getting the answers to my questions. What do I do? Where do I go? So he says, for me, my guru is Mahapariva. I don't know whether he is going to become your guru, whether you will get the answers to your questions. Every person, it is a personal search. It is an individual anugrah that one gets. But I can ensure that you get audience with them. So Paul Brunton comes and meets Mahapariva. Mahapariva को मिलने वो, as usual, he's already understood the way Indians work.
तो गुरु को मिलने का आने के बाद फल फूल सब लेके आते हैं, बैठे हैं कॉर्नर में, एंड इज ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ पीपल, द मैनर इन विच पीपल कम, इतने भक्ति भय से, इतना भाव से आते हैं, नमस्कार करते हैं, अनुग्रह लेके जाते हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, नो, द काइंड ऑफ दैट डिवोशन दैट पीपल कम विद इन सीइंग अ गुरु इज अमेजिंग, एंड वो सब देख रहा है एज एन स्पेक्टेटर एंड इज वेरी अट्रैक्टेड, महापरिवार का देख रहा है, इज वेरी अट्रैक्टेड कि ऐसे तेज, ऐसा गुरु मिलना कितना दुर्लभ है। His chance comes, सब देता है and मिलते हैं, and then he starts off on English. Mahapariva of course doesn't speak English. He knows English, but he doesn't speak English. This is not about ego. It is about भाषा अभिमान. Okay? मैं मेरे भाषा में बात करूँगा. Just like these guys don't agree to talk in the other language, they will talk in their language. He speaks in Sanskrit, Tamil, and Venkatramani is doing the translation. This is a very important meeting and it goes on also for a very long time. I will not cover it in detail. बहुत सारी चीजों पे Paul Brunton asks questions, Mahapariva gives an answer. He goes on to ask about why people are on war. लोग क्यों इतना लड़ाई कर रहे हैं? World War I हुआ था तभी, तो इतना क्यों लड़ाई कर रहे हैं? People are accumulating weapons. Mahapariva gives answer how there has to be maitri bhav between the nations. They talk of statesmanship, they talk of politics, they talk of philosophy. Then finally comes to a question, मुझे मेरा गुरु मिलेंगे क्या? तो बोलते हैं the first step itself you have taken, right? गुरु चाहिए, ये चाह ही तुमको गुरु दिला देगा. गुरु मिलना, योगी राम सूरत कुमार बोलते हैं, गुरु मिलना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है. अगर गुरु को ढूंढने निकल जाओ, मतलब गुरु चाहिए, ये अगर चाह भी मन में आ जाए, वही गुरु का अनुग्रह समझ लो. That itself is a great blessing. Just the desire to have a guru itself is great. बोलते वो डिजायर तुम्हें जागृत हो गया है, that itself is great, you will surely get your guru. साधना करते रहो, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, मुझे पता नहीं, बट तुम्हें गुरु जरूर मिलेंगे, डोंट वरी. तो he goes on to ask, नहीं मुझे इसी जन्म में चाहिए, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? तो बोलता मैं गुरु शायद ना बन पाऊं, बिकॉज तुम्हें जिस तरह का गुरु चाहिए, you have a lot of questions, you want to ask, you need somebody to answer them, और मैं एक धर्म का गुरु हूँ, फॉर्मल पीठ पे बैठा हूँ, मेरे बहुत सारे काम रहते हैं, I will not be able to give you a dedicated time. So you need a guru who will be able to give you the dedicated time, that anugraha, the type of anugraha that you require. I might not be your guru. मैं जब भी आऊँ आप मुझे मिलेंगे क्या? बोले मैं जब भी आऊँ तो मैं तुम्हें मिलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट शायद मैं तुम्हारे लिए वो गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कोई और है. Paul Brunton asks, can you suggest some guru for me? Is there a guru that you can suggest? क्या आप ही मुझे suggest करेंगे? तो महापरिवार सोचते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए शायद appropriate there are two people, but amongst them also the most appropriate is a saint of the highest order who's in Tiruvannamalai, भगवान रमण महर्षि करके हैं, उनको जाके मिलो, तुम्हारा सारा क्वेश्चंस का निवारण भी हो जाएगा, तुम्हारा you will also find your guru there. Mahapariva doesn't stop there. He says, Paul, you have to promise me that you will go and visit him right away. Paul Brunton says, परिवार मेरा तो ऑलरेडी शिप का, तभी उस जमाने में शिप्स थे, मेरा शिप का ऑलरेडी बुकिंग हो गया है, आई एम गोइंग बैक टू ब्रिटेन, अगले टाइम में जब आऊंगा मैं मिलूंगा. महापरिवार says, no, you have to meet him right away. You promise me that after leaving from this place you are going to Tiruvannamalai and meeting him right away. तो Paul Brunton goes on to write, he saying, I myself was not ready. कितना करुणा है गुरु का, महापरिवार का. He wanted me to have a guru and he was like forcing me to go and meet Tiruvannamalai रमणाश्रम में जाने को बोल रहे थे. तो he says, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ परिवार, मैं जाता हूँ. ऐसे करके he goes to his room at Chennai. ये चंगलपेट में हुआ, which is close to Chennai. चेन्नई में there is already one person waiting outside his room and he's saying, मुझे किसी ने बताया कि आपको तिरुवन्नामलई जाना है and मैं भी तिरुवन्नामलई जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जाता हूँ. So Paul Brunton is all psyched. He's saying Mahapariva has gone to the next level. He probably doubted that I will not go. He's also sent a person to ensure that I am taken there. उस रात को when he is sleeping, he is in half sleep state. He actually not got sleep, and he can actually वो एक sleep का एक state रहता है ना, when we can actually know what is happening around us. We not got fully, we have not slept off. तो आंख ऐसे खोलते हैं, आंख खोलते ही बेड साइड में on his leg side, he sees a small light. He is kind of moving slowly, and then उठ के ऐसा देखते हैं, he sees that face, it has got a face, and महापरिवा का face आ गया है.
and he says you ensure that you go to Tiruvannamalai right away tomorrow, your guru is waiting there. ऐसे करके महापेरिवा ने ज्योति के स्वरूप में उनको दर्शन देके उनको ये इंश्योर्स दैट तिरुवन्नामलाई में जाते हैं. ऑफ कोर्स उसके बाद व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री. पॉल ब्रंटन गोज, ही मीट्स रमणाश्रम में जाके, वो एक रूम है उनका जहाँ वहाँ भगवान बैठते थे, तो वहाँ पे जाके ही सिट्स एंड इज जस्ट वाचिंग भगवान. काफी लोग हैं वहाँ पे, देखते 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 उनके आंख बंद हो जाते हैं. इज ऑलरेडी गॉन इनटू मेडिटेटिव स्टेट. And there is a sudden body में warmth आ गया है, sudden engulfing of warmth, and he suddenly opens his eyes and he finds there is nobody else in the room, and Bhagwan is actually seeing somewhere else all this while. When he opens his eyes and he sees Bhagwan is staring at him. 2 minutes concentrated stare देते हैं भगवान, and then he looks at the other side. Paul Brenton says, all the questions that I had for all these years, everything got solved. There is not a question in my mind. Everything has got answered. That is what Bhagwan Ramana Maharshi was. वो मुंह से कभी दीक्षा नहीं देते थे. पॉल ब्रंटन ही, चिन्मयानंद स्वामी, the great चिन्मयानंद, जिन्होंने चिन्मयानंद मिशन चालू किया. As a youngster when he goes, उनको भी नए दीक्षा. योगी राम सूरत कुमार जिनके बारे में बात करता हूँ, उनके लिए भी नए दीक्षा भगवान ने दी. वो सिर्फ एक बार देखेंगे, देखने के बाद जो होता है ना, that person is transformed. For life is transformed. They all become saints. Transformation is like they all become saints. योगी राम सूरत कुमार के गुरु को भी नई दीक्षा भगवान रमणा महर्षि ने दी. ऐसे बड़े दिग्गज रमणा महर्षि के बारे में बात करते रहेंगे, राइट? इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी. तो पॉल ब्रंटन का ऐसा एक महान सर्विस टू मैनकाइंड, बिकॉज ऑफ हिम देन ही राइट्स अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन भगवान. उसके वजह से लॉट ऑफ वेस्टर्नर्स स्टार्टेड कमिंग. आज भी रमणा महर्षि, probably lot of Indians don't know, but a lot of Westerners know about Ramana Maharshi is because of what Paul Brunton did and his and his books did to us in terms of whatever he explained. ये लाइट से मुझे याद आया, I will cover a beautiful story. So what happens is एक दिन रात को around 10 o'clock महापेरिवा is retired for the day. वो अपने रूम में चले जाते हैं. महापेरिवा रूम में जाने के बाद बाकी के वर्कर्स को काम रहता है नहीं, तो पूजा का सामान सब रख के ये सब खत्म करके देन उनको घर जाने के रोज सोने के लिए 12 बज जाएंगे. तो वेरी डिफिकल्ट लाइफ स्टेइंग इन आश्रम एंड मठा इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो ये अभी जस्ट रूम में गए, इन लोग बाकी असिस्टेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं. तभी एक बंदा आता है, इट्स अ ड्राइवर. ही कम्स एंड ही सेज मेरे माय पर्सन हुज बुक माय व्हीकल, उनको अभी के अभी महापेरिवा का दर्शन लेना है. तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी दर्शन नहीं मिलेगा, तो आने दो, सुबह आने दो, दर्शन का अरेंज करते हैं. तो दैट पर्सन आल्सो वॉक्स इन. ही इज अ फॉरेनर, ही इज अ ब्रिटिशर. ही कम्स, बोलते नो आई हैव टू सी शंकराचार्य राइट अवे. तो ये बोलते नहीं राइट अवे वगैरह होगा नहीं, अब आइए कल आके दर्शन, सुबह आके दर्शन लीजिए, अभी जस्ट इज रिटायर्ड टू द रूम, अभी नहीं आएंगे बाहर. तो बोलते नहीं कल पॉसिबल ही नहीं है, कल आई गॉट माय टिकट बुक, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी के अभी दर्शन चाहिए. तो ये असिस्टेंट बोलते हैं नहीं टिकट बुक कर लिया तो आपका दुर्भाग्य है, आपको दर्शन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आपको अगर दर्शन चाहिए तो कल सुबह आइए. दिस पर्सन आल्सो इज वर्क फॉर द फुल डे. महापेरिवा को बाहर बुलाएंगे, एक तो आएंगे भी नहीं, इट्स नॉट राइट. एक बार अंदर जाने के बाद दे आर आल्सो इन मेडिटेटिव स्टेट. तो ये ना आर्ग्यूमेंट चालू है. वो ड्राइवर बोल रहे हैं नहीं प्लीज महापेरिवा को एक बार जाके बता दीजिए कि आए, अगर वो ना बोल देते हैं तो हम चले जाएंगे, आप प्लीज डोंट डिसाइड, आप जाके बताइए. तो ऐसा इनके बीच में देयर इज अ स्मॉल आर्गुमेंट दैट इज हैपनिंग एंड द वॉइस हैज रिजन. महापेरिवा अंदर सुन लेते हैं. तो महापेरिवा ऐसा बुलाते हैं, बोला कि बाहर क्या आवाज चालू है. तो कुछ नहीं, वो हम लोग ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं. नहीं कुछ तो आवाज चालू है, कोई इंग्लिश में भी बात कर रहा है. नहीं वो हम ही हैं, कुछ नहीं. अभी इसको डर लग रहा है कि गलती से बता दे कोई आए मिलने, और महापेरिवा ने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस आएंगे, आधा घंटा बैठेंगे और उनको घर जाने के लिए उतना और देरी होगी. राइट. तो वो झूठ बोल रहे हैं कि कोई नहीं. महापेरिवा से कोई झूठ क्या बोलेगा. यहाँ पे कॉफी का नैवेद्य दे रहे हो, वहां पे उनको स्वाद मिल रहा है, मतलब नथिंग यू कैन हाइड फ्रॉम यू. तो महापेरिवा बोल रहे हैं नहीं कुछ तो चालू है, क्या चालू है मुझे बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा. तो बोलते हैं नहीं वो कोई आया है, अभी के अभी दर्शन देना बोल रहे हैं, वो अभी आपसे तो नहीं होगा, अभी तो आप अंदर आए हैं, दर्शन नहीं होगा. तो बोलते नहीं बिठा के रखो मैं आता हूँ. तो बोले अरे क्या अभी ये बाहर आएंगे, एंड फॉरेनर है मतलब उसका 1000 सवाल रहेगा ना. टिपिकल फॉरेनर दे आर इंक्विजिटिव पीपल, 1000 सवाल पूछेंगे और ये भी सब जवाब देते बैठेंगे. आज घर पे जाना रहा, यहीं पे सुना पड़ेगा. तो महापेरिवा वापस तैयार होके वहां बाहर आ जाते हैं. बाहर आके बैठे हैं
सामने that foreigner is sitting at a distance and Mahaperia is sitting 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, बात ही नहीं हो रहा है. That person is slowly getting into a state of emotion. आंखों में पानी आ रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है और उनको क्या उन्होंने दर्शन दिया पता नहीं है और एक झटके में ऐसे उठते हैं और पास आने की कोशिश करते हैं. तो महापेरिवा को you can't touch ना, तो that assistant is standing by the side and in the fear that this person will touch महापेरिवा, वो एक सामने थाली लेके वो ऐसे रखते बीच में, नहीं दूर हो जाओ. तो that person is saying हटाओ मुझे देखना है, मुझे पेरिवा को देखना है, मुझे वो लाइट देखना है, क्या तुमको लाइट दिख नहीं रहा है, मुझे वो लाइट देखना है. तो ये हटा नहीं रहा है. तो फिर महापेरिवा बोलते हैं बाजू हो जाओ. 2 minutes that this person is just watching महापेरिवा and he closes his eyes, he cries a lot and he कुछ बात किए बगैर चला जाता है. तो ये होने के बाद महापेरिवा उठ के अंदर जाते वक्त ये असिस्टेंट, ये क्या होता है ना, हम लोग इसको स्वाधीन बोलते हैं. मतलब when we are serving the guru very closely, daily देखते हैं, वो एक अलग भाग्य है, that's a different thing. मगर वो स्वाधीनता भी आ जाता है, मतलब वो फ्रीडम, you know. तो बोलते हैं क्या पता नहीं इनको क्या बल्ब जला के दिखाया, हमको तो कभी दिखाते नहीं है, ऐसे घूम के ना ही बात करते ही गेट्स ऑन टू स्टेप. तो महापेरिवा बोलते क्या बोले तुमने, क्या बोला, इधर आओ. तो नहीं महापेरिवा कुछ नहीं. तो नहीं क्या कुछ तो तुमने बोला अभी, बल्ब का कुछ तो बोला. तो बोलते हैं नहीं अब कोई आता है, वो बोलता है मैंने क्या लाइट देखा, आप किसको लाइट दिखा देते हैं, हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, हमें तो कोई लाइट दिखाते नहीं है आप. तो वहां पर बोलते हैं सभी के लिए अनुग्रह होता है, उसके लिए वो पर्याप्त था. मैं अगर मेरा लाइट तुम्हें दिखा दूं तो तुम सेवा ही नहीं कर पाओगे. You will not be able to serve me. Your job is to serve. Your job is to serve the matha. रोज उठ के तुमको काम है, अगर वो लाइट देख लोगे तो you will not be able to serve at all. मगर तुम्हें भी अनुग्रह है, उसको भी people have served him also got moksha, right? उनको अलग तरीके से उनको अनुग्रह हुआ है. तो ऐसे people got different kinds of experiences from Periva. Some people saw Balaji Tirupati, some people saw Kamakshi Devi, some people saw Shiva in him. Some people didn't see anything in him. They just served him like a guru, and everybody got moksha. Everybody got what they deserved in their life. That is the way personalized anugraha. That is the way individual level पे अनुग्रह करते थे महापेरिवा. With this beautiful story, I think I'll take a break. There are a lot of stories to come. We'll cover one more week. If I'm able to cover a good part of the stories in the next week, then we'll take a purti. We'll do it dynamically. अगर नहीं खत्म होता है तो I will want to cover one more week of महापेरिवा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. इन्होंने जिस तरह से अनुग्रह किया, जिस तरह से इंडिविजुअल लेवल पे आके हमारे लेवल पे उतर के उन्होंने जो अनुग्रह किया, that is what hits us, and then we get hooked on to him, and then we are hooked on to him for generations. I know people who are generations devotees of महापेरिवा, अभी भी लोगों को अनुभव होता है उनके वजह से, because that's the kind of अनुग्रह that it does. These are the beautiful stories. और भी stories हैं, we will try and cover it as we go along. Hope you all could hear it clearly and without any break. Okay. Yeah. Correct. Thanks a lot. Great. If there are any questions, feel free to ask. Otherwise, we'll get to our Hanuman Chalisa and then complete today's session. Hanuman Chalisa kare? Thank you. Shri Guru Charana Saroja Raja Nijaman Mukura Sudhari Baranau Raghuvar Bimala Jasu Jodayak Padachari बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ. शंकर सुमन
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर तो सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा दुनु पैसारे शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ये सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय। गुड थैंक